Welcome to my channel Mathematics Gain. I am Arsi Das. Provide you some important questions on differential equations. Lesson 9 Differential equations. So, lesson 9. So, differential equations. Equations, subject mathematics, class 12, lesson 9. Lesson 9 Introduction. What is the differential? I have to introduce about lesson. The equation involving derivatives of the dependent variables y with respect to independent variable x is called differential equations. So differential equations, the equations involving derivatives of the dependent variables with respect to independent variable x is called the differential equations. So differential equations are, that means differentiation of any parts of independent variables with respect to dependent variables is called differential equations. So this type of the equations are included in these lessons. So the modern or topic or moral of these lessons is differential equation. Suppose 2 d square y upon dx square plus 4 dy upon dx plus y equal to 0. So this is the differential equation because independent variables y is differentiate with respect to independent variables, that is why it is a differential equation. Next, order of differential equation. Order of differential equation. Highest differentiation, highest derivatives or differentiation is called order. So order means highest differentiation, that means highest derivative. The differentiations of any parts highest, maximum कितना बार हुआ, कितना बार differentiation है, that is called the order. So order means highest differentiation, highest maximum कितना बार differentiation है, and that is called order. So in case of the order, you have to find the maximum differentiation. Calculate the maximum differentiation. That means maximum कितना बार differentiation है, that is the order. Suppose I give one example. 2 d cube y upon dx cube plus 4 dy upon dx plus y equal to 0. Its order equal 3. Order equal is 3 because highest differentiation is 3 times.
क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन है इस इक्वेशन के लिए 3 है। डेट इज वाई इट्स ऑर्डर इज 3, बिकॉज इस हाइस्ट मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, इस इक्वेशन को मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ 3 बार, क्योंकि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। सो इस इक्वेशन में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स, डेट इज वाई इट्स ऑर्डर इज 3। नेक्स्ट, डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिग्री क्या चीज़ है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसका जो हाईएस्ट पावर है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है, एंड उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री मीन्स क्या है? डिग्री है किसी डिफरेंशिएशन इक्वेशन का जो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, हाईएस्ट पावर को देखते हैं, उसी टाइम में हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है उसका जो पावर है, एंड दैट इज कॉल्ड द डिग्री। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन है उसका पावर कितना है वो है डिग्री। सपोज 2 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 बिकॉज हाईएस्ट डेरिवेटिव 3, एंड डिग्री 3, डिग्री 1 बिकॉज हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जो है उसका जो पावर है वो 1 है, डेट इज वाई इट्स डिग्री 1। सो डिग्री मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है ये है डिग्री, डिग्री 1, बिकॉज पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशिएशन इज 3, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन इज 1। मतलब हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जो है जैसे D3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये है हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। इस हाईएस्ट डिफरेंशिएशन का जो पावर है इसमें कोई पावर नहीं होने का मतलब इसका पावर 1, डेट इज वाई इट्स डिग्री 1। सो आपका समझ में आ गया डिग्री एंड ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डिग्री और ऑर्डर दोनों अलग बात हैं। ऑर्डर मीन्स हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, बट डिग्री मीन्स power of highest differentiation. But if some restrictions are given in case of the degree, but if suppose the log dy upon dx है, मीन्स log में x का प्लेस में आपका कोई डिफरेंशिएशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट में dy upon dx है, नहीं तो e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर dy upon dx, नहीं तो dx upon dy है। एनी पार्ट आपके साथ से इस पार्ट में से कोई भी पार्ट आपका इक्वेशन में इंक्लूड है, देन डिग्री नॉट डिफाइन। डिग्री आप निकाल नहीं सकते, ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें से किसी एक पार्ट जैसे आपका है तो आप डिग्री कैन नॉट डिफाइन। इज एनी पार्ट देन डिग्री नॉट डिफाइन। उस इक्वेशन में आप डिग्री निकाल नहीं सकते हैं, ऑर्डर निकल जाएंगे लेकिन डिग्री कैन नॉट डिफाइन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। Next, the number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation is equal to order of the differential equations. That means number of arbitrary constant. Arbitrary constant means किसी भी इक्वेशन में जैसे a, b, c ये नंबर हैं, that is called the arbitrary constant. तो ऑर्बिटरी कांस्टेंट कितना होगा वो उसी इक्वेशन का ऑर्डर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ऑर्डर जितना है उतना ही होगा ऑर्बिटरी कांस्टेंट, बट इट इज रेस्ट्रिक्शन इज डेट ओनली फॉर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर होगा उतना ही ऑर्बिटरी कांस्टेंट होगा, जितना ऑर्डर उतना ऑर्बिटरी कांस्टेंट। नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट A B C D E arbitrary constant, the number of arbitrary constant in the particular solution, the number of arbitrary constant in the particular solutions of a differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज जीरो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट में एक भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक भी नहीं होता, वो ऑर्डर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते। बट इन केस ऑफ द जनरल सॉल्यूशन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर, बट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन जैसा आपका क्वेश्चन में लिखा है ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ऑर्डर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेंगे। देखो और एक बार, जैसा आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ए बी सी का वैल्यू डालने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ द पार्टिकुलर सॉल्यूशन देयर इज नो एनी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिपेंड ऑन कांस्टेंट ऑन ऑर्डर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2, exercise 9.2, look question, show that x plus y tan inverse y is the solution of y square y dash plus y square plus 1 इक्वल टू 0। आपको देखा नहीं जो पहला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आपको देखा ना जो पहला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है जी। शो डेट x प्लस टेन इनवर्स y इज द सॉल्यूशन ऑफ y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप देखिए y डैश है, y डैश मीन्स सिंगल वन डेरिवेशन है, वन डिफरेंशिएशन। सो आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सेम टू सेम आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और x से भी कर सकते हैं y से भी कर सकते हैं। सो टेन इनवर्स y, x प्लस टेन इनवर्स y डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड with respect to x we get, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर देंगे। दोनों साइड में जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आएंगे x से भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy अपॉन dx दैट इज द y dash means dy upon dx and tan inverse y differentiation of tan inverse y 1 upon 1 plus y square and y dash, क्योंकि मैं tan inverse y को डिफरेंशिएशन करेंगे x से, तो बाय सेम प्रोडक्ट रूल यू गेट 1 upon 1 plus y square, अगेन y को डिफरेंशिएशन करेंगे dy upon dx दैट मीन्स y dash, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 plus y dash into 1 plus y square इक्वल y dash। मैं दोनों साइड में क्रॉस इंटू कर दिया, नीचे का जो पार्ट है 1 प्लस वाई स्क्वायर ये मैं क्रॉस इंटू कर दिया, लेफ्ट साइड चला गया देखिए, और राइट साइड में है y dash, सिंगल ओनली y dash बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो लेफ्ट साइड का वैल्यू है जस्ट हाँ यस that is the y dash on the right side। now आप जब इंटू कर देंगे, जैसा आप मान लीजिए इंटू कर दिया लेफ्ट साइड, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू वाई डैश, बाई क्रॉस कर दीजिए दोनों साइड में वाई डैश, यू गेट वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। हेंस फर्स्ट इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। जो फर्स्ट जो इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इससे पता लग जाता है क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है जो इक्वेशन जो सॉल्यूशन है सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
y माइनस कॉस वाई इक्वल एक्स, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और इज द सॉल्यूशन ऑफ y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स पैकेट क्लोज y डैश इक्वल टू वाई। डेट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन आपको देखा नहीं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। यू हैव टू शो डेट फर्स्ट इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट जो इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये देखा नहीं है। इसलिए मैं दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर दिया फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में मुझे पता लग गया कि एक बार डिफरेंशिएशन है, जितना बार डिफरेंशिएशन दिखाई देता है उतना बार आप डिफरेंशिएशन कीजिए। जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपका दो बार, एक बार सिंगल ओनली वन बार डिफरेंशिएशन है, इसलिए मैं उसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। y का डिफरेंशिएशन है y डैश कॉस ऑफ y का डिफरेंशिएशन साइन y इंटू y डैश इक्वल टू 1, बिकॉज आई डिफरेंशिएट दिस पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, so dy upon dx means y dash, so I get y dash plus sin y dash equal to 1, because x का डिफरेंशिएशन 1 ही हो गया। सो बाय, आप देखो ये जो क्वेश्चन है राइट साइड देखिए, जो प्रूव करना है उसका राइट साइड में y है, राइट साइड जो y है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइप में क्वेश्चन में किसी एक साइड को आप जो दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से कर दीजिए, क्योंकि राइट साइड में देखिए y है तो मैं उसी हिसाब से y से इंटू करना है, मैं y से इंटू कर दिया। देखिए मैं राइट साइड में y से इंटू कर दिया, मुझे राइट साइड से इंटू करना है, y से करना है, क्योंकि राइट साइड में y है सेकेंड इक्वेशन का। इसलिए इस टाइप में क्वेश्चन में जो भी किसी एक पार्ट में जो भी लेफ्ट साइड नहीं तो राइट साइड जो भी प्रूव है, जो भी चाहिए एक साथ में कर दीजिए। तो इसलिए दोनों साइड में मैं y से इंटू करके y डैश को कॉमन ले लिया फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आई गेट y, सो आई गेट दिस पार्ट। बट आप देखिए जब आपका सेकंड जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में y नहीं है, इसलिए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें से y का वैल्यू निकाल दीजिए। वी हैव फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन y का वैल्यू आप निकालेंगे। अभी फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू निकालना है। अभी मैं निकाल दिया। देन y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस y, मैं y का वैल्यू निकाल दिया फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस y, y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस y, तो y का वैल्यू मैं निकाल दिया, क्योंकि आपका तो सेकेंड इक्वेशन में y नहीं है। दोनों इक्वेशन को देखोगे, जो नहीं है उसका वैल्यू पुट करोगे। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन में y नहीं है, मैं y का वैल्यू निकाल दिया x प्लस कॉस y, सो वी गेट, मुझे पता लग गया जी y का वैल्यू मैं इक्वेशन में डाल दिया, जो सेकेंड इक्वेशन आया इस इक्वेशन में y का वैल्यू डाल दिया। तो x प्लस कॉस y प्लस y साइन y एंड ब्रैकेट क्लोज y डैश इक्वल टू y, एंड दैट इज़ द सॉल्यूशन। तो इस टाइप में क्वेश्चन में जब आप सॉल्यूशन करेंगे, एक बात ध्यान से याद रखिए, जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन का किसी एक पार्ट को आप सेटिस्फाइड कर दीजिए, मतलब जो भी है उस हिसाब से आप लिख दीजिए, बना लीजिए। बाकी सारा एक साइड को अपने आप प्रूव होते जाएगा, एक साथ में दोनों को भी प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक एक करके प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हैंस प्रूफ। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा है जी ये पार्ट इसका सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करो, वो पार्ट इसका सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करो। इसी केस में आप क्या करेंगे, जो चाहिए फर्स्ट पार्ट को उसी हिसाब से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई हैव टू गो नेक्स्ट एक्सरसाइज।
मुझे इतना तक समझ में आ गया और मैं आगे जा रहा है। ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैं पूरा लेसन ही इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आगे जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग अभी प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.4। ये जो 9.4 है सारा क्वेश्चन आप सेपरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन। तो वेरिएबल सेपरेशन मीन्स इसमें से जो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई हैं इसको बिल्कुल सेपरेट करना है, दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आप इसको सेपरेट करेंगे। इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे, ओनली सेपरेशन प्रोसेस से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है, देखिए 9.4, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन, आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है dy अपॉन dx इक्वल अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन, dy अपॉन dx इक्वल अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए जो y है y एक साथ में लिखे है dy के साथ, और जो x पार्ट है उसको dx के साथ लेके आइए। मतलब दोनों को dy और dx को बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए। dy और dx को बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए, dy और dx। सो मैं दोनों साइड में सेपरेट कर दिया। देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। सो dy स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx, इक्वल टू dx। देखिए मैं क्या किया, y को y के साथ में और x को x के साथ में सेपरेट कर दिया। dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, मैं y और x को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। ठीक है, dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में dx। देखिए आपका dy और dx बिल्कुल कंप्लीट सेपरेट हो गया। नाउ दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। देखो मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। तो लेफ्ट साइड में जो फॉर्मूला गया 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 को कैन बी रिटर्न एज 2 स्क्वायर। सो इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ साइन इनवर्स y अपॉन 2 बिकॉज इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a। ये साइन इनवर्स x अपॉन a का आइडेंटिटी है, तो मैं उसी हिसाब से साइन इनवर्स y अपॉन 2 इसी फॉर्म में लिख दिया। जो साइन का आइडेंटिटी है मैं साइन का आइडेंटिटी लगा दिया। और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dx यू गेट x प्लस सी। सो देखिए आइडेंटिटी आपका इंक्लूड हो गया। सो आपका रिजल्ट आ गया साइन इनवर्स y अपॉन 2 प्लस x इक्वल टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, it is given y log y dx minus x dy इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में x और dy ये दोनों मिक्स हो गया, ये दोनों मिक्स, x एंड dy ये दोनों मिक्स हो गए। इसको आप सेपरेट करेंगे। y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। देखिए मैं दोनों साइड में सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मैं क्या क्या दोनों साइड को सेपरेट कर दिया। x को x के साथ में, y को y के साथ में सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में। सो dx अपॉन x, एक पार्ट को राइट साइड में भेज दिया, एक को लेफ्ट साइड में भेज दिया। बैक्स के दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। दोनों साइड पे देखिए इंटीग्रेशन x और सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देंगे अभी।
सो आई गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल log x, और राइट साइड का जो पार्ट है log y का वैल्यू t मान लो, लेट log ऑफ y इक्वल टू t। देखिए log ऑफ y का वैल्यू में t मान लिया, तो log ऑफ y का वैल्यू जैसे t मानेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएशन कर दिया। y से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y आप इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। log ऑफ y का डिफरेंशिएशन है 1/y, log ऑफ y का डिफरेंशिएशन है 1/y dy इक्वल टू dt। बोथ साइड में इसको डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा log ऑफ y का 1/y dy इक्वल टू dt। तो ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में मेरे पास log x, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x, एंड राइट साइड आपके पास आ गया जी log ऑफ t, बिकॉज 1/t आपके पास 1/t आ रहा है, 1/t का इंटीग्रेशन है log t प्लस log c, क्योंकि बाकी सारा पार्ट जो है वो log में आ रहा है, इसलिए जो कांस्टेंट पार्ट है उसको भी log में लिख दीजिए। तो log में जब लिखेंगे आपके पास आ रहा है log x प्लस log t प्लस log c। इन केस ऑफ द log में जैसे प्लस है तो आप इनटू में लिखोगे, तो log x इक्वल log c t, बिकॉज इन केस ऑफ द प्लस, जैसे प्लस है log में तो आप इनटू करना होता है, log में जैसे प्लस है तो इनटू करोगे, x इक्वल टू सी टी हो गया। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। log दोनों साइड पे कैंसिल कर दीजिए, x इक्वल टू सी टी, log दोनों साइड पे कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास आ रहा है x इक्वल टू सी टी। हाँ, वो आपका आंसर है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो सेपरेशन क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द सेपरेशन आप सबसे पहले x और y को सेपरेट कर दीजिए, x और y को सेपरेट कर दीजिए। x और y सेपरेट करने के टाइम में x पार्ट को एक साथ में और y पार्ट को और एक साथ में ऐसे कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट नंबर 3 e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो देखो ये e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। तो आप देखिए ठीक इसी क्वेश्चन को भी x और y जो पार्ट है इसमें कंप्लीट सेपरेट करना होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन e की पावर x 10y dx इक्वल टू मैं बिल्कुल सेपरेट कर दिया, 2 को 2 साइड में लेके आया, 2 का साइड में लेके जाने के बाद में इसको राइट साइड में लेके गया, इसका पहले माइनस है उस माइनस से इंटू भी कर दिया, 1 माइनस e की पावर x को e की पावर x माइनस 1 हो गया। मैं दोनों साइड में माइनस से इंटू भी कर दिया। इस बार x और dx को बिल्कुल अलग अलग करेंगे। e की पावर x 10y dx इक्वल e की पावर x माइनस 1 सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई। सो देखो इस क्वेश्चन को जब सेपरेट करोगे x और y पार्ट को बिल्कुल अलग अलग करोगे, x और y पार्ट, तो x को x के साथ में और y को y के साथ में सेपरेट करोगे। लेकिन
सेपरेट करने के टाइम में डी पार्ट जो है, जो एक्स है, डी एक्स है नहीं तो डी वाई, उसको हमेशा ऊपर में, डेट मीन्स न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 और सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10 वाई। देखो मैं बिल्कुल सेपरेट कर दिया एक्स और वाई को, जैसे एक्स पार्ट ई की पावर एक्स डी एक्स के पास लेके गया, ई की पावर एक्स माइनस 1 को भी सेपरेट कर दिया और सेक स्क्वायर वाई और 10 वाई को भी बिल्कुल सेपरेट कर दिया। एवं लेफ्ट साइड में लेट ई की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी और 10 वाई इक्वल टू यू एंड डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी टी, सॉरी इट मिस्टेक है, डी टी एंड सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी यू। नॉट ये डी वाई नहीं है, ये डी टी है, लिखना मिस्टेक हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास आ रही 1 अपॉन टी डी वाई, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, ये जो पार्ट है 1 अपॉन टी आ रही, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी 1 अपॉन यू, क्योंकि आपके पास जो ए की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी है और 10 वाई इक्वल टू यू है, तो आपके पास आ रहा है लॉग ऑफ, इसको इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन टी और डी टी, डी वाई की जगह में डी टी लिखना है। तो इसमें लॉग ऑफ टी और राइट साइड में आ रहा है लॉग ऑफ यू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू डी यू इक्वल टू लॉग ऑफ यू प्लस लॉग सी, क्योंकि बाकी सारा पार्ट आपका लॉग में है तो कांस्टेंट पार्ट जो है उसको भी लॉग में लिखना है, क्योंकि बाकी सारा जो पार्ट है उसी हिसाब से लिखोगे। इसलिए मेरे पास आ गया लॉग टी इक्वल लॉग यू प्लस लॉग सी, मेरे पास पूरा कंप्लीट इसी फॉर्म में आ रही है। सो इन केस ऑफ द लॉग प्लस में जैसे हैं तो इंटू होता ही, इसलिए इंटू होने से लॉग सी और यू इंटू करके लॉग सी यू, लॉग लॉग कैंसिल, टी इक्वल टू सी यू, ये आ रहा है आपका क्वेश्चन का आंसर। एक बार टी और यू का वैल्यू इसी इक्वेशन में टी और यू का वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि लॉग ऑफ टी इक्वल टू लॉग सी यू आ रहा है, बिकॉज ये आपका प्लस में है, प्लस होने से इंटू होता है, तो दोनों साइड में लॉग लॉग कैंसिल कर दिया, तो आपके पास आ रहा है लॉग टी इक्वल टू लॉग यू प्लस लॉग सी, तो टी इक्वल टू सी यू, टी इक्वल टू सी यू, ये हो गया आपका आंसर। और ये पर जैसा वैल्यू पुट कर देंगे टी का वैल्यू, टी का वैल्यू है ए की पावर एक्स माइनस 1, ये एक्स नहीं है, ए की पावर एक्स माइनस 1 और राइट साइड में सी, नेक्स्ट यू का वैल्यू है 10 वाई, तो ये 10 वाई में वैल्यू पुट कर दिया, ये 10 वाई है, 10 वाई, तो ए की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू सी 10 एक्स, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सो देखो ये जो सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन है, वेरिएबल सेपरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैं दोनों साइड पे इसका इंटीग्रेशन किया था, इसको इंटीग्रेशन साइन लगा दिया बेटा, पहले मैं लगाया नहीं था, मिस्टेक हो गया था, तो आपको इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड में। देखो नेक्स्ट होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, that is the homogeneous differentiation equation, differential equation, ये homogeneous differential equation है। देखो बन equation homogeneous differential equation, ये homogeneous है और differential equation है। तो homogeneous differential equation है वो इक्वेशन जिसका डिग्री हर टर्म के लिए सेम है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मींस जिसका डिग्री हर इक्वेशन के लिए सेम, मतलब हर पार्ट के लिए डिग्री सेम, और हर पार्ट के लिए जब डिग्री सेम होता है उसको कहते हैं डिफरेंशियल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ डिग्री आर सेम, मतलब हर पार्ट के लिए डिग्री सेम होना चाहिए, जो भी पार्ट है हर पार्ट के लिए। इफ द डिग्री आर सेम फॉर ऑल टर्म्स, जितना भी टर्म्स है
इफ डिग्री आर सेम फॉर ऑल टर्म्स, हर टर्म के लिए डिग्री सेम होना चाहिए। हर टर्म के लिए जैसे डिग्री सेम है, डेट इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ डिग्री आर सेम फॉर ऑल टर्म्स, हर टर्म के लिए डिग्री सेम। तो आपका सेम डिग्री चेक करने के लिए x का प्लेस में kx नहीं तो लैम्डा x, y का प्लेस में ky और लैम्डा y डाल दोगे। k की पावर n, नॉट kn, ये kn नहीं है, k की पावर n f x, y इसी फॉर्म में होना चाहिए। डेट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है x, ये जो लैम्डा नहीं तो x नहीं तो y k जो लिया था, इसमें से n पावर को कॉमन आ जाना चाहिए। इसी फॉर्म में जैसे कोई भी क्वेश्चन है, डेट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। डेट मीन्स इफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इसी फॉर्म में जैसे है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx of the form dy upon dx, then write y equal to bx। इन दिस केसेस जैसे आपका होमोजेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इफ द इक्वेशन dy upon dx हैं इसी फॉर्म में है, तो आप y equal to bx एंड डिफरेंशिएशन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसा आपका इक्वेशन इसी फॉर्म में है, तो आप क्वेश्चन में क्या करोगे, y equal to bx लिखोगे, y equal to bx, y equal to bx लिख के x से डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, x से डिफरेंशिएशन कर दोगे। जैसे आपका जो इक्वेशन है, आपका जो एक्सरसाइज 9.5 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सारा होमोजेनियस इक्वेशन है, ये सारा इक्वेशन आपका होमोजेनियस इक्वेशन है। एक्सरसाइज 9.5, तो एक्सरसाइज 9.5 में जितना क्वेश्चन सारा होमोजेनियस इक्वेशन है। अभी आपको बात है जी, क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगाओगे जी ये होमोजेनियस इक्वेशन है। आप देखोगे हर पार्ट का डिग्री, डिग्री मीन्स पावर, हर पार्ट का पावर जैसे सेम है, डेट मीन्स इसका डिग्री सेम, डिग्री मीन्स पावर, इसका पावर सेम है। तो देखो जैसे एक्सरसाइज 9.5, एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 6, x dy माइनस y dx। देखो क्वेश्चन का पैटर्न है x dy माइनस y dx इक्वल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अभी देखो इंटू डी एक्स, देखिए आपका क्वेश्चन इसी फॉर्म में है। इस बार इसमें देखिए लेफ्ट साइड पे हर टर्म है डिग्री, लेफ्ट साइड में 1 डिग्री 1, एक्स डी एक्स का डिग्री 1, वाई डी एक्स डिग्री 1, और राइट साइड में जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है डिग्री 2, लेकिन रूट ओवर का बाहर से आएगा डिग्री 1 होगा, तो दोनों साइड में डिग्री सेम, डेट इज वाई इट इज़ ए होमोजेनियस इक्वेशन, इट इज़ होमोजेनियस इक्वेशन। ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। तो होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप एक इक्वेशन को dx अपॉन dy और नहीं तो dy अपॉन dx इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। x dy माइनस y dx स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो x dy इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन को दो साइड में भेज दिया, देखो मैं y dx को राइट साइड में भेज दिया और इसमें से dx को कॉमन ले लिया, dx कॉमन आ गया। तो मैं क्वेश्चन को क्या करूं,
dy अपॉन dx कर देंगे, क्योंकि तो ऊपर पार्ट आपको बड़ा दिखाई देंगे और नीचे पार्ट छोटा होगा। तो मैं क्वेश्चन को dy अपॉन dx कर दिया, dy अपॉन dx इक्वल y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन एक्स कर दिया बेटा, क्योंकि मैं dy अपॉन dx निकल दिया। तो dy अपॉन dx निकालने के टाइम में मेरे पास y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इसी फॉर्म में लिख दिया। तो dy अपॉन dx इक्वल y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। लेट y इक्वल टू bx, क्योंकि क्वेश्चन आपका dy अपॉन dx है। किसी भी क्वेश्चन वो dy अपॉन dx जैसे हैं तो y इक्वल टू bx लिखोगे एंड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको x से डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड में। इफ आई डिफरेंशिएट x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएशन कर दिया, तो मेरे पास आएगा dy अपॉन dx, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन dy अपॉन dx है, इसलिए मैं x से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आई गेट x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1, तो x प्लस x dy अपॉन dx मैं x से दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन कर दिया, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx मैं x से डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो दोनों साइड में x से डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो ये b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स मैं दोनों साइड में x से डिफरेंशिएशन कर दिया, y इक्वल टू बी एक्स और डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो इस बार मैं लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट कर दूंगा dy अपॉन dx का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। तो b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल डी बी एक्स। सो आपके पास जहाँ y है उसमें bx लिख देंगे। इक्वेशन में जहाँ y है उसमें bx लिख दीजिए। तो आपके पास आ रहा है bx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y के प्लेस में bx लिख देंगे हम लोग। ठीक है, y के प्लेस में bx लिख देंगे, और नीचे जो भी पार्ट है x से, नीचे का जो पार्ट है वो x है, वो मैं लिख दूंगा अभी। एक बार y के प्लेस में भी bx लिख देंगे, ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है b प्लस एक्स, इसका प्लेस पे लिख देंगे अपॉन डी एक्स। इसको मैं dx कर दिया बेटा। देखो x dv बाई dx, इसका नीचे dx कर देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है dy अपॉन dx है b प्लस एक्स dv बाई dx। मैं पहले पुट कर दिया दोनों साइड में b प्लस एक्स dv बाई dx, मैं दोनों साइड में वैल्यू पुट कर दिया। तो देखो ये x dv बाई, क्योंकि ये इसका नीचे भी bx, इसका पूरा नीचे भी आप x था x लिख देंगे अपॉन x।
अपॉन एक्स लिखने के लिए मैं लाइन खींच रही। देखो भी ये है एक्स, इसका नीचे एक्स लिख देंगे। नेक्स्ट, क्योंकि डी बी बाई डी भी डी एक्स बी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे एक्स था तो एक्स पुट कर देंगे, और जो वाई का वैल्यू बी एक्स है वो भी वैल्यू पुट कर देंगे। नीचे डी एक्स है और ये एक्स है। नाउ भी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल भी एक्स, इसमें से x को कॉमन लिख दीजिए, क्योंकि y का वैल्यू जब आप भी एक्स लिखोगे तो भी स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर से x बाहर आएगा और नीचे का x कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, भी और भी दोनों साइड पे कैंसिल, भी और जो भी हैं दोनों साइड में मैं कैंसिल कर दिया। देखो दोनों साइड में कैंसिल। भी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर। तो भी दोनों साइड में कैंसिल, तो आपके पास बचे हैं डी बी अपॉन डी एक्स, और इसको मैं सेपरेट कर दिया। जो भी पार्ट बचे हैं भी को भी की साइड में, एक्स को एक्स की साइड में, क्योंकि भी कैंसिल, और डी बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स मैं दोनों साइड में कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके मैं दोनों साइड में देखो डी बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर और डी बी अपॉन एक्स मैं दोनों साइड में मैं इसको कैंसिल कर दिया। डी बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर तो आपका लॉग भी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल लॉग एक्स, ये लॉग एक्स प्लस लॉग सी, क्योंकि बाकी सारा पार्ट भी लॉग में आ रहा है। इसको दोनों साइड में जो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आइडेंटिटी है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, तो भी प्लस लॉग ऑफ भी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नॉट, ये मिस्टेक हो गया बेटा, ये बी स्क्वायर होगा, और लॉग ऑफ सी एक्स तो लॉग कैंसिल, दोनों साइड में लॉग कैंसिल हो गया। ये भी की प्लेस में बेटा एक्स लिखिए, ये भी होगा, ये भी है नॉट एक्स। एक बार लॉग कैंसिल, आपके पास बचे हैं भी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर 1 प्लस भी स्क्वायर यस, ये भी स्क्वायर मैं करेक्शन कर दिया बेटा, पहले क्वेश्चन में ये एक्स था ना, ये एक्स नहीं है भी है इंटू सी एक्स। नाउ ये हो गया आपका आंसर। आप भी का प्लेस में वाई अपॉन एक्स लिख देना, क्योंकि वाई इक्वल टू बी एक्स मैं पहले पुट किया था, तो भी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स पुट कर दीजिए, जस्ट ये आपका आंसर होगा। तो देखो होमोजेनस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए पुट इसी फॉर्म में किया जाता है, पुट भी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये वाई अपॉन एक्स कर दिया, ठीक है, भी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो देखो ये पुट कर दिया भी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो आपका इक्वेशन
v के प्लेस में y अपॉन एक्स लिखोगे तो y अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो इसको एलसीएम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम भी कर सकते हैं इसका। स्क्वायर रूट से जब आप एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और उस साइड में है वाई और नीचे एक्स है। इसको मैं इंटीग्रेशन लिखना भूल गया था बेटा, मैं दिखा दूँ। इस पार्ट में मुझे इंटीग्रेशन लिखना चाहिए था। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपको कैसे भी हालत में क्लियर होना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लुक वेरी केयरफुली। आप जो भी किया लेकिन ये टॉपिक आप छोड़ना नहीं चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे तो कुछ भी छोड़ दीजिए लेकिन इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। ये टॉपिक से आपका काफ़ी क्वेश्चन पुट आउट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है, देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए differential equation, a differential equation of the form a differential equation of the form, a differential equation of the form, a differential equation of the form, ए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है किस फॉर्म में है क्या देखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर P and Q are constant और फंक्शन ऑफ x ओनली। देखो बेटा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो P and Q है, P and Q आर कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए और नहीं तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, इससे अलावा कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपका इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। ये आपका फंक्शन ऑफ x होना चाहिए और नहीं तो कांस्टेंट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें y नहीं होना चाहिए, इसमें जो p होगा p कांस्टेंट होगा नहीं तो फंक्शन ऑफ x होगा। एट फर्स्ट फाइंड, इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे हैं तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है। एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन फैक्टर, इसको कहते हैं IF। इंटीग्रेशन फैक्टर मीन्स IF, इंटीग्रेशन फैक्टर मीन्स IF, इसको IF निकालना पड़ता है। इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं इसको IF। तो IF से IF कैसे निकाला जाता है, e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx p dx। तो उस इंटीग्रेशन फैक्टर से पूरा लाइन को, पूरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डिवाइड कर दोगे, पूरा लाइन को जब डिवाइड करोगे, सॉरी इनटू कर दोगे, तो आपका लेफ्ट साइड में लिखोगे, देखो आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.6, एक्सरसाइज 9.6 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज 9.4, एक्सरसाइज 9.4 सॉरी 9.6
all these are question are linear equation because these questions are of the form dy upon dx plus py equal to q. क्वेश्चन आपका इसी फॉर्म में है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में जैसे क्वेश्चन नंबर जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपका लीनियर फॉर्म में है, तो आप इसको इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल एस्केप नहीं कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल साइन x, ठीक है। dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x, तो देखो ये dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x, dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल साइन x। तो देखो इस क्वेश्चन में ये भी आपको उसी फॉर्म में है, p का वैल्यू है 2, p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू साइन x। q का वैल्यू जो है वो साइन x है, क्योंकि आपका लीनियर इक्वेशन ही है, ये साइन x है q का वैल्यू। तो मेरे पास p का वैल्यू भी निकल गया, q का वैल्यू भी निकल गया। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन जो है dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x, dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x है। तो यार p का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू साइन x है। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p dx होता है, e की पावर p dx। तो e की पावर p का वैल्यू 2 और dx का इंटीग्रेशन x, तो e की पावर 2x है। तो मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन फैक्टर ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसा निकाला था मैं, देखो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर e मीन्स एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p का वैल्यू 2 dx का x, तो e की पावर 2x हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर। इस इंटीग्रेशन फैक्टर से मैं दोनों साइड में इंटू कर देंगे। दोनों साइड में इंटू करने के बाद लेफ्ट साइड में ओनली y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, जस्ट आपको y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर लिखोगे लेफ्ट साइड में। तो आपके पास आ गया, देखो ये मैं दोनों साइड में इंटू कर देंगे और राइट साइड में आएंगे जो भी पार्ट उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन लेफ्ट साइड में आप इंटीग्रेशन नहीं करना बेटा, लेफ्ट साइड में एक साथ में आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, जस्ट इतना ही लिखना है। लेफ्ट साइड में y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। आप लेफ्ट साइड में लिखोगे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर जैसे लिख दिया, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो आपके पास आ रही y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है e की पावर 2x, e की पावर 2x। ये जो x नीचे है ना बेटा, ये नीचे नहीं है, ये e की पावर है, ये e की पावर है। तो y e की पावर 2x और राइट साइड में e की पावर 2x इंटू साइन x। तो जस्ट इस पार्ट को आप राइट साइड का जो पार्ट है उसको आप आइलेट लगा के इंटीग्रेशन करोगे। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन नहीं करना, ऑलरेडी हो गया। लेकिन राइट साइड में ई स्क्वायर 2x ई की पावर 2x साइन x, इसको जस्ट इंटीग्रेशन करोगे। और लेफ्ट साइड में y ए की पावर 2x, y ए की पावर 2x जो है y ए की पावर 2x, y ए की पावर 2x, जो भी पार्ट है y ए की पावर 2x लेफ्ट साइड में हो गया। और राइट साइड पे जस्ट इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। राइट साइड पे जस्ट इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन साइन लगाना भूल गया था बेटा, तो मैं वो भी लगा रहा हूँ। देखो ये साइड और ये साइड में इंटीग्रेशन साइन लग जाएगा,
ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करना। तो लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड में मेरे पास आंसर आ गया y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, लेकिन राइट साइड में जो है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x साइन x dx, तो इसको आइलेट से आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका जस्ट इसके सिंप्लीफाई इतना ही है, e की पावर 2x साइन x का इंटीग्रेशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx प्लस y sec x, y sec x इक्वल टू 10 x, dy अपॉन dx प्लस y sec x इक्वल टू 10x। इसमें देखें, इसमें p का वैल्यू है sec x और q का वैल्यू 10x। p का वैल्यू sec x और q का वैल्यू 10x, तो dy अपॉन dx प्लस y sec x इक्वल टू 10x। तो p का वैल्यू sec x और q का वैल्यू है, टेन एक्स, तो sec x और 10x, p का और q का वैल्यू दोनों वैल्यू निकल दिया, p का वैल्यू sec x और q का वैल्यू 10x, मैं दोनों वैल्यू p और q का वैल्यू निकल दिया। नेक्स्ट आपको निकलना है इंटीग्रेशन फैक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए जो रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग में आप इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे। p इक्वल टू sec x और q इक्वल टू 10x। सो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेशन फैक्टर है आप में इसको मैं सॉल्यूशन एक साथ में करके दिखा रहा हूँ। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, where p इक्वल टू sec x और q इक्वल टू 10x। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा e की पावर p dx, e की पावर p मीन्स sec x का log ऑफ sec x प्लस 10x, log ऑफ sec x प्लस 10x। e और log दोनों कैंसिल हैं, एक्सपोनेंशियल और log दोनों कैंसिल हैं, तो आपको पास आ रहा है sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x। तो e की पावर log sec x प्लस 10x, तो आपका दोनों कैंसिल होके sec x प्लस 10x है, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x, ए के पावर log sec x प्लस 10x। तो log और एक्सपोनेंशियल दोनों कैंसिल, log और एक्सपोनेंशियल दोनों कैंसिल, sec x प्लस 10x। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाय द रिलेशन, इस रिलेशन से आपको सॉल्यूशन आ जाएगा डायरेक्ट y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और राइट साइड में इंटीग्रेशन इंटू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया sec x प्लस 10x, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया, तो लेफ्ट साइड में आ गया y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा, आपका कोई इतना मेहनत भी नहीं होगा। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है sec x प्लस 10x और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x और 10 स्क्वायर x, क्योंकि मैं इंटू कर दिया, तो sec x 10x का sec x और 10 स्क्वायर का sec स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर का sec स्क्वायर माइनस 1 कर दिया प्लस c। तो sec x 10x का sec x और sec स्क्वायर का 10x और dx का x प्लस c, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो y
ब्रैकेट में sec x प्लस 10x और राइट साइड में sec x प्लस 10x माइनस x प्लस c, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर और सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप एक बार सुनो, इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन है तो लेफ्ट साइड में करोगे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, राइट साइड में इंटीग्रेशन इंटू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो जस्ट राइट साइड में इंटीग्रेशन फैक्टर को इंटू करोगे q के साथ और इसके इंटीग्रेशन कर दोगे, आपका रिजल्ट आ गया। तो देखो ये इस साइड में जितना भी क्वेश्चन है सारा एक ही प्रोसेस है। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन फैक्टर y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और राइट साइड में q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, जस्ट इतना याद रखना। लेकिन राइट साइड को इंटीग्रेशन करना होगा, लेफ्ट साइड को इंटीग्रेशन करना जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy dx, 2xy dx इक्वल टू कॉट x dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू कॉट x dx। तो राइट साइड में आप देखिए ये क्वेश्चन भी, सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको सेपरेशन नहीं कर सकते और होमोजेनियस नहीं है। जो क्वेश्चन सेपरेशन नहीं कर सकते, होमोजेनियस नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है लीनियर इक्वेशन। सो इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दिया x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर लॉग x। ये जो क्वेश्चन है x से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आके ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है dy अपॉन डी एक्स, ये लीनियर फॉर्म में है, बिल्कुल कंप्लीट लीनियर फॉर्म में है। तो लीनियर फॉर्म होने से सबसे पहले आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, ये तो आप जानते हैं, हर क्वेश्चन में बताया जी। इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर किसका निकालोगे, p का, p मीन्स 2 अपॉन एक्स और q मीन्स x लॉग x q। तो p का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फैक्टर जो है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो देखो आपके पास आ रहा है पूरा कंप्लीट इक्वेशन सॉल्यूशन होके जे dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, होयर p का वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और q का वैल्यू लॉग x। तो इंटीग्रेशन है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये है इंटीग्रेशन। तो 2 अपॉन एक्स इसका इंटीग्रेशन है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, तो आपके पास आ गया e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर। लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों कैंसिल, आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। एक बार एक्स स्क्वायर से दोनों साइड को इंटीग्रेशन करो तो आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर एक्स स्क्वायर और राइट साइड में आ रहा है q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स। तो आपके पास आ रहा है एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो आपके पास जो बचा है इसको आइलेट लगा दो। आइलेट में फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब, बिकॉज ये लॉगरिथमिक वो एल्जेब्रिक है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आइलेट आई जस्ट इंटीग्रेट, आई गेट एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है, जस्ट इंटीग्रेशन कर दिया तो आपके पास आ रहा है लेफ्ट साइड में y इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स इंटीग्रेशन फैक्टर, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन फैक्टर है एक्स स्क्वायर वाई और लॉग एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस
जिस पार्ट को छोड़ दिया इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको मैं छोड़ दिया उसको मैं डिफरेंशिएशन करेंगे। सो एक्स क्यूब एक्स की पावर 4/4 माइनस लॉग का एक्स डिफरेंशिएशन 1/x और एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 3 का एक्स की पावर 4/4। सो इस साइड में एक्स क्यूब मिल गया, अगेन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो मेरा पास दोनों में से 1/16 को मैं कॉमन लेकर आया, 1/16 को मैं कॉमन लेकर आया। तो कॉमन लाने के बाद दोस्तों मेरा पास आया 1/16 एक्स स्क्वायर 4 log ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर -2, क्योंकि मैं एक्स की पावर -2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया। डिवाइड नहीं करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड कर दिया मैं। तो मेरे पास आ गया y इक्वल टू 1/16 एक्स स्क्वायर 4 log ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर -2। ये हो गया आपका लेसन, और ये लेसन आपका कंप्लीट मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।